Hello and welcome. So, this is the last chapter of your political science syllabus, chapter 8 Indian Politics Trends and Development. Earlier, this chapter was Recent Development in Indian Politics. Now, with the change in the name of the chapter, a lot in the chapter has also changed. So, now in this chapter, you all have to study about the era of coalitions. And in this era of coalition, basically, we will talk about the National Front government and the United Front governments. Then you have to study about the UPA 1, UPA 2, and NDA 1, 2, 3, 4, all these governments. And then some new issues that have emerged in the politics about them also, it is added in your syllabus. So the previous content is changed and the new content is given. Now I'll try to cover up as much in detail as possible so that you don't get confused while answering the questions in the board exams. So in this in this video, I'll be explaining about the era of coalitions and in that the National Front government. Okay, so let's begin the video. Now, the era of coalitions starts in India from 1989 at the central government level. ठीक है, स्टेट्स में जो थी वो कोलिशंस गवर्नमेंट जिनको कि संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट्स कहा गया था, ये 1967 में आ गई थी. बट सेंटर में जो कोलिशन गवर्नमेंट्स थी वो 1989 में पहली बार आई. कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब ये होता है when two or more parties come together to form the government, and this situation arises because no party is able to secure a majority of its own. ठीक है, तो अगर जैसे लोकसभा की मेंबरशिप है, सदस्यों की जो संख्या है वो है 543, 543. तो 543 में मेजॉरिटी होती है 273, 273. ठीक है, तो अगर कोई पार्टी 273 सीट नहीं जीत पाती है लोकसभा के इलेक्शंस में, कम सीट्स आती हैं, तो उसे किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाना पड़ता है. ऐसी सरकार को, इस तरह की गवर्नमेंट को हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें कि 2 और मोर पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जिससे कि उनकी मेजॉरिटी हो सके. ठीक है, तो 1989 का जो इलेक्शन था, लोकसभा इलेक्शन, उसमें कांग्रेस हार जाती है. अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑफ 1989, दिस पेज इज देयर इन योर बुक इटसेल्फ एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज. एंड आई रिमेंबर देयर हैड बीन क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पेज ओनली, जिसमें ये पूछा गया था कि फ्रॉम 1989 ऑनवर्ड्स राइट द नेम ऑफ द 4 कोलिशन गवर्नमेंट्स, द ईयर एंड द प्राइम मिनिस्टर्स हेडिंग देम. तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस पेज को निगलेक्ट नहीं करिएगा. और एक बात और कि अगर आप ये पेज, सिर्फ ये पेज समझ गए तो आपके लिए पूरे चैप्टर को समझना बहुत आसान हो जाएगा. कीप दिस पेज एज अ रेफरेंस फॉर दिस चैप्टर. So 1989 first comes the VP Singh government. That was the National Front government. It was a coalition government. Then the coalition was the same, National Front, but the Prime Minister changed. Chandrasekhar became the Prime Minister. Then the government fell and there were mid-term elections in 1991 in which Congress came to power with majority and PV Narasimha Rao becomes the Prime Minister. Okay. Then this government completed its 5-year term, and in 1996 again in the elections, no party could get a majority. But since BJP was the single largest party, BJP forms the government. Atal Bihari Vajpayee becomes the Prime Minister, but no party came in support of BJP, and that's why the government fell after 13 days, just 13 days. And then the opposition came together to form the United Front, and the United Front forms the government under the prime ministership of HD Devegowda. अब HD Devegowda किसी वजह से उनको भी हटाया गया और दूसरे प्राइम मिनिस्टर इसी यूनाइटेड फ्रंट के बने, जिसका जो थे IK गुजराल. ठीक है, ये गवर्नमेंट भी अपना टर्म पूरा नहीं कर पाई और मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं फिर 1998 में, जिसमें कि बीजेपी फिर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, यहाँ एनडीए अलायंस बनता है और एनडीए अलायंस मेजॉरिटी पूरी ले नहीं पाता है, तो किसी तरह से वो नेक टू नेक मामला था. और ये गवर्नमेंट चलती है 13 मंथ्स के लिए, फिर गिर जाती है, फिर इलेक्शन होते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस 1999 में,
और इस बार इलेक्शंस में बीजेपी को एनडीए अलायंस को फुल मेजॉरिटी मिलती है और अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ओके, ये गवर्नमेंट अपना पूरा टर्म कंप्लीट करती है 1999 से 2004 तक। फिर 2004 के इलेक्शन में यूपीए अलायंस जीतता है और 2 टर्म्स यूपीए को मिलते हैं 2004 से 2009 तक। फिर 2009 इलेक्शन में अगेन यूपीए विंस, so 2009 to 2014. Then after that, you all know 2014 the NDA alliance led by Prime Minister Modi, and then 2019 and again the NDA alliance led by Prime Minister Modi comes to पावर। तो ये है द गवर्नमेंट सिंस 1989। इसको पूरा चार्ट ये जो है ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप इस समय की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझ सकेंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में ये चार्ट लगाया, जिससे कि जो पहली रिक्वायरमेंट है वो आपको समझ में आनी चाहिए, दैट यू हैव टू लर्न दिस चार्ट एटलीस्ट। ये जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स और जितनी भी गवर्नमेंट्स और उनका टाइम पीरियड। ओके, सो नाउ वी बिगिन फ्रॉम द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट दैट केम इन 1989। सो इन द 1989 इलेक्शन कांग्रेस वाज डिफीटेड। अच्छा, अब कांग्रेस डिफीट क्यों हुई थी? अब आपको याद होगा कि 1984 में after the death of Indira Gandhi, Rajiv Gandhi becomes the prime minister, and he becomes the prime minister after that when the elections were held. The Congress got too many seats, like it got full majority in parliament. लेकिन राजीव गांधी की गवर्नमेंट का जो टर्म है वो खत्म होते होते 1989 तक आते आते उनकी गवर्नमेंट पे करप्शन के बहुत चार्जेस लगे, और इन चार्जेस में जो जिन्होंने ये आरोप लगाए उनमें जो सबसे आगे थे वो ये थे वीपी सिंह। वीपी सिंह राजीव गांधी की गवर्नमेंट के ही डिफेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने गवर्नमेंट से रिजाइन किया था, गवर्नमेंट से हट गए थे ये कहते हुए कि बोफोर्स गन्स जो हैं उनकी डील में जो है वो कमीशन खाया गया है। तो इसको कहा जाता है बोफोर्स दलाली का मामला। बहुत ही फेमस केस है ये, और इसको आप लोग इसको गूगल कर सकते हैं, इस केस के बारे में और जान सकते हैं। तो इसकी वजह से जो वीपी सिंह थे उन्हीं की मिनिस्ट्री के वो रिजाइन करके अलग हो गए थे, और उन्होंने इन करप्शन के चार्जेस को बहुत ज़्यादा हवा दी। ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम पास आ रहा था इसलिए बहुत ये मामला आगे चला गया, और इसका खामियाजा ये हुआ कि 1989 के इलेक्शंस में कांग्रेस वाज डिफीटेड। द मेन इशू ऑन विच इट वाज डिफीटेड वाज दैट ऑफ करप्शन। Okay, so Congress was defeated. It could get only 197 seats. 197 short of majority. अभी मैंने आपको बताया कि जो majority है, जो magic figure है, वो है 273 seats. Okay, so Congress could manage only 197 seats, and all the other opposition parties were in no mood to support Congress at that time. So they came together and they formed the National Front. Okay, so National Front was the alliance of Janata Dal and some other regional parties. They received support. अब ये जो नेशनल फ्रंट था ये भी मिलकर इनकी मेजॉरिटी नहीं बन रही थी, तो चूंकि मेजॉरिटी नहीं बन रही थी इसलिए इनको 2 और पार्टीज ने सपोर्ट किया। These 2 parties were BJP and the Left Front. So this cartoon is in your book. इस कार्टून में ये दिखाया गया है कि ये वीपी सिंह है जिन्होंने नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनाई इन 1989, और इनको 2 लोगों ने सपोर्ट किया, 2 पार्टीज ने आउटसाइड सपोर्ट दिया। इसको कहते हैं जब आप गवर्नमेंट का पार्ट मत बनिए मगर गवर्नमेंट को सपोर्ट करिए, देन इट इज कॉल्ड आउटसाइड सपोर्ट। ओके, सो यू डू नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, no member of your party is going to become a part of the ministry, but then you are supporting the government, then it is called the outside support. ओके, तो यहाँ पे ये लाल कृष्ण आडवाणी है। ओके, ये बीजेपी के लीडर थे, और ये हैं ज्योति बासु। ये उस समय वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे और ये बिलोंग करते थे सीपीआई को। तो सीपीआई और बीजेपी दोनों ने वीपी सिंह की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। अब अगर आप देखिए तो जो बीजेपी है दैट इज अ राइट विंग पार्टी, ये राइटिस्ट पार्टी है, और जो सीपीआई है ये लेफ्टिस्ट पार्टी है। तो 2 opposite ideologies came together to support the VP Singh government so that VP Singh can form the government, National Front can form the government, and Congress remains out of power.
Okay, so this was the National Front government that came in 1989, and this marks the beginning of the era of coalition. तब से लेकर आज तक कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं बनी है जो, जैसे अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है एनडीए की, उसमें दो द बीजेपी हैज मेजोरिटी, बट थियोरेटिकली स्पीकिंग दैट इज आल्सो अ कोएलिशन गवर्नमेंट, बिकॉज एनडीए इज एन अलायंस. ओके, तो तब से जो लेकर है जो कोएलिशन गवर्नमेंट का एरा शुरू हो गया इंडिया में. Now, in 1990, VP Singh, after becoming the Prime Minister of India, he decided to implement the Mandal Commission. Now, Mandal Commission is given in your book, but in the new syllabus, the content of the chapter that has come, Mandal Commission is not mentioned over there. But I'll give a small detail of this Mandal Commission at the end of the chapter. So, in case any question comes, you are able to answer. तो मंडल कमीशन जो था वो 1977 में बना था, लेकिन जब तक इसकी रिकमेंडेशंस पार्लियामेंट में रखी जाती, जो 77 वाली जनता पार्टी गवर्नमेंट थी वो गिर गई थी. 1990 में व्हेन द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट केम टू पावर, इसकी रिकमेंडेशन को इन्होंने इम्प्लीमेंट करने का डिसाइड किया. अच्छा, कौन सी रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट हुई थी? टू गिव the reservation for OBCs, other backward communities in jobs and higher education. अब ये डिसीजन जो था वीपी सिंह गवर्नमेंट का, इसने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की. जो सपोर्ट कर रहे थे गवर्नमेंट को डिसीजन को, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लोग थे वो चाहते थे कि उनको रिजर्वेशन मिले, और बहुत से ऐसे ग्रुप्स थे जो ये अपोज कर रहे थे कि हायर एजुकेशन और जॉब्स में जो भी होना चाहिए वो मेरिट्स के बेसिस पे होना चाहिए, कास्ट को उसमें बेस नहीं बनाना चाहिए. तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी कंट्री में क्रिएट हो गई, और इसने बहुत, इट लेड टू वायलेंट प्रोटेस्ट ऑल्सो. बहुत जगह पर सेल्फ इमोलेशन स्टूडेंट्स ने किए. सेल्फ इमोलेशन मतलब आत्मदाह, खुद को जला दिया स्टूडेंट्स ने, और क्लैशेस भी हुई. तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा, और वीपी सिंह बिल्कुल अपनी जो उन्होंने किया था इम्प्लीमेंटेशन, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं थी, वो इसको पीछे लेने को तैयार नहीं थे. तो ये मंडल इशू एक बहुत बड़ा इशू बना. दूसरा जो बड़ा इशू वीपी सिंह की गवर्नमेंट के टाइम में हुआ वो थी रथ यात्रा. जो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो डिमांड्स थी वो तेज होने लगी, और इसमें जो लीड कर रही थी पार्टी वो थी भारतीय जनता पार्टी अलॉन्ग विद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड विश्व हिंदू परिषद. तो इसमें इसी का एक पार्ट था, इसी मूवमेंट का एक पार्ट था रथ यात्रा, जो कि लाल कृष्ण आडवाणी उस समय बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने शुरू किया. दिस वॉज अ यात्रा, रथ यात्रा, राम रथ यात्रा, विच वॉज कंडक्टेड, विच वॉज, इसको सोमनाथ से अयोध्या तक थी. तो सोमनाथ से इनका रथ चलता है. रथ इन द सेंस कि वो एक खुली व्हीकल पे थे, और साथ में सपोर्टर्स इनको ज्वाइन करते गए, पार्टीज ज्वाइन करती गई, और धीरे धीरे रथ यात्रा बहुत बड़ा रूप ले लिया. अब ये जो मोबिलाइजेशन हो रहा था इन द नेम ऑफ रिलीजन, इसको देखकर जो वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी वो भी परेशान थी, क्योंकि एक तरह से जो दल आपको सपोर्ट कर रहा है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है. तो इस तरह की पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व हो गई, और फाइनली इस रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया गया. बिहार में उस समय लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट थी, और उन्होंने इस रथ यात्रा को वहां पे रोक दिया लॉ एंड ऑर्डर का इशू लेकर, और आगे बढ़ने नहीं दिया. जैसे ही रथ यात्रा रोकी गई, भारतीय जनता पार्टी जो कि नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को, जो वीपी सिंह गवर्नमेंट को आउटसाइड सपोर्ट कर रही थी, उसने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया. ठीक है, इससे प्रीवियस स्लाइड में आपने ये देखा है कि ये बीजेपी जो है वो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वीपी सिंह की गवर्नमेंट बन पाई थी. तो इन्होंने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया. सपोर्ट विड्रॉ करते ही जो वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी वो माइनॉरिटी में आ गई. अब इसको बचाने के लिए दूसरे लीडर को लाया गया, जिसको, जो ये है चंद्रशेखर. ठीक है, इन्होंने फिर ये अग्रीमेंट हुआ कि चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और चंद्रशेखर को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस आगे आई. ठीक, तो कांग्रेस की सपोर्ट से, देखिए है वही नेशनल फ्रंट, लेकिन अब जो पार्टी सपोर्ट कर रही है वो कांग्रेस कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि बीजेपी को किसी तरह का माइलेज आगे मिले. बीजेपी बहुत तेजी से राइज करने लगी थी बिकॉज ऑफ द अयोध्या इशू.
ओके, तो अब कांग्रेस सपोर्ट करती है, लेकिन फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और 7 महीने के बाद ही कांग्रेस विड्रू सपोर्ट फ्रॉम दी चंद्रशेखर गवर्नमेंट एंड दैट लेड टू मिड टर्म इलेक्शन ऑफ 1991। ठीक है, तो सरकार नया नेशनल फ्रंट की गिर जाती है 1991 में। अब इस सरकार ने 2 प्राइम मिनिस्टर थे, वीपी सिंह पहले और उसके बाद चंद्रशेखर। वीपी सिंह की गवर्नमेंट को आउटसाइड सपोर्ट बीजेपी ने किया था, चंद्रशेखर की गवर्नमेंट को आउटसाइड सपोर्ट कांग्रेस ने किया था। ओके, आप देखिए कि इस समय अलायंस पॉलिटिक्स चल कैसी रही है। यहाँ पे आइडियोलॉजी से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब सिर्फ इस चीज से है कि आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या करता है, कोई किस पार्टी के पावर में रहने से आपकी पार्टी को नुकसान है और किस पार्टी के पावर से दूर रहने में आपकी पार्टी का फायदा है। ओनली थिंग इन कंसिडरेशन वॉज दिस। ओके, सो 1991 में मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, 1989 के बाद 2 साल में ही मिड टर्म इलेक्शन करवाने पड़े। अब इन इलेक्शन की जो कैंपेन हो रही थी, उसी कैंपेन के दौरान राजीव गांधी वॉज असैसिनेटेड इन श्री पेरम्बदूर, तमिलनाडु में उनका असैसिनेशन हुआ बाय द एलटीटीई टेररिस्ट। इसके बाद ही तुरंत इलेक्शन हुए थे, तो थोड़ा सा सिंपथी फैक्टर भी था और थोड़ा सा ये भी था कि लोगों ने नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट देख लिया था कि ये भाई जो कोलिशन है ये ठीक से चल नहीं पाते हैं, काफ़ी डिस्प्यूटेड रहता है इसमें मामला, एडजस्टमेंट ठीक से बन नहीं पा रहा था किसी पार्टी का। तो जो कांग्रेस थी वो फिर 1991 इलेक्शन में मेजोरिटी के साथ आती है एंड फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड पीवी नरसिम्हा राव दिस टाइम बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। ही इज पीवी नरसिम्हा राव। excuse me, he becomes the prime minister of the country. This government completed its full term, तो 1991 से लेकर 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस की गवर्नमेंट लेड बाय पीवी नरसिम्हा राव वाज देयर। ओके, 1996 में अगेन इलेक्शंस होंगे और उसके इलेक्शंस के बाद की कहानी I will be telling in the next video. So in the next video I'll tell you about the United Front government and the main features of the coalition politics in India. Okay, so keep watching the videos and keep supporting me. Thank you for all your support. Please do comment, share and like the video, subscribe the channel if you haven't done so far. Thank you so much for watching. Bye bye.